Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel, Munjal's Physics Classes. Today we will discuss the next topic of rotational motion, that is coordinate of center of mass. First of all, we should know position vector. If we join a point to origin, and then this vector is called position vector. OP vector is the position vector, and suppose coordinates of point P are x, y and z. X, y, z क्या है? These are the coordinates of point P. Then position vector can be written as r vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, where I cap, j cap, k cap, these are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. R vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. So these are the coordinates. Then we have to find the coordinate of center of mass. And we know that for a system of two particles, R is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. This is the position vector of center of mass. If x, y, z are the coordinates, then we can write r center of mass is equal to x center of mass I cap, y center of mass j cap and z center of mass k cap. If x center of mass, y cm, z cm are the coordinate of center of mass, so we can write r vector in this way. We can write r1 vector x1 I cap, y1 j cap and z1 k cap. यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है? These are the coordinates of mass m1. r2 vector x2 I cap, y2 j cap and similarly z2 k cap. ये कोऑर्डिनेट है जहाँ पे उस पॉइंट के जहाँ पे मास m2 रखा है. Put the values. Then this will become x center of mass, y center of mass j cap and z center of mass k cap is equal to m1. What is r1? x1 I cap, y1 j cap and z1 k cap plus m2 x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap and whole divided by m1 plus m2. Now we have to compare the coefficient of I cap, j cap and k cap on both sides. For example, x center of mass, y and z center of mass. Open the bracket. ये क्या है? m1 x1 इनको ऐड कर दो प्लस m2 x2 I कैप, फिर m1 y1 प्लस m2 y2 j कैप प्लस m1 z1 m2 z2 k cap and whole divided by m1 plus m2. Open the bracket and you may write directly also. Now compare coefficient of I cap, j cap and k cap on both sides. On comparing coefficient of I cap, j cap and k cap on both sides, we will get the equation x center of mass is equal to m1 x1 then m2 x2 upon m1 plus m2. Y center of mass will become m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2 and z center of mass will become m1 z1 m2 z2 upon m1 plus m2. These are the coordinates of center of mass.
तो इसका न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद करना है तो यहाँ से याद कर लो। वी नो दैट आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। इफ x कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड, तो r को लिख दो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और z कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या बन जाएगा, z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। इफ 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, अगर ये तो दो ही हैं, 3 कोऑर्डिनेट हो, 4 कोऑर्डिनेट हो, 4 मासेज हो तो क्या होगा, इफ देयर आर 4 मासेज तो क्या बन जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो जितने मासेज रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे एंड यूजिंग द फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द x coordinate and y coordinate and z coordinate. If z is given then find z, not given then find x and y. 4 masses 1 kg 2 3, mass is 1 kg and coordinates are 2 and 3. Only x and y coordinate are given. 3 kg minus 1 minus 2, 2 kilogram 1 0, 4 kg 2 minus 2. These are the 4 masses and coordinates are given. Question is find coordinates of center of mass. Find coordinates of center of mass. मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये क्या रखा है, ये m1 है, इसका नाम x1 है, इसका नाम y1 है। ये क्या बन जाएगा m2 x2 y2। दिस इज m3 x3 y3 and this is m4 x4 y4। 4 masses are given and their coordinates are given। तो सिंपल सा लगाओ फार्मूला, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। वैल्यूज क्या क्या रखी है, व्हाट इज m1 1, x1 इज 2, m2 3 किलोग्राम, then x2 is -1, m3 is 2 kg, x3 is 1, m4 is 4 kilogram and x4 is 2। अगर यूनिट्स लिखी है मीटर तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर लिखा है सेंटीमीटर लिखो, कुछ नहीं लिखा है तो यू विल नॉट राइट एनीथिंग। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। दिस विल बी 2 minus 3 plus 2 plus 8 upon 10। Answer comes out to be 9 upon 10। तो 9 upon 10 means 0.9। This is the coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass। अब the y coordinate of y coordinate, write formula m1 y1, then m2 y2, then m3 y3, m4 y4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4। Put the value m1 is 1 into 3, 1 into 3, m2 3 kg, y2 minus 2, 3 into minus 2, then 2 into 0, m3 into y3 plus m4, m4 is 4 kilogram into minus 2 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4, that will be 10। Then answer comes out to be
3 minus 6 plus 0 minus 8 upon 10 minus 11 by 10 minus 1.1. देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 0.9 एंड माइनस 1.1. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस क्वेश्चन में क्या था कि कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, फिगर इज गिवन एंड फ्रॉम फिगर यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स आपको अपने आप भी निकालने हो सकते हैं. क्वेश्चन इज दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड L. दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड L. M1 is equal to M placed at A. Second mass M2, it may be same, it may be different. Suppose it is 2M. It is placed at B. This mass is M3, यानी कि 3M placed at C. And this is D point. And mass is M4 and again it is M. Suppose it is again M. It is placed at here, D point. Find the coordinates of center of mass. मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. अगर मासेस सारे सेम होते तो सिमिट्री से सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होना था. वो हम प्रूव भी कर देंगे और ये आपका होमवर्क भी है. इसके क्वेश्चन के बाद आप करना. मासेस सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. अब मासेस डिफरेंट है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, टुवर्ड्स हैवियर साइड. तो इधर mm है, यहाँ 2m 3m है, तो ओरिजिन से सेंटर से राइट साइड में मिलेगा आपको. वेरीफाई कर लेंगे हम. अब क्वेश्चन आता है मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के और मुझे कुछ दे नहीं रखा. अब प्रॉब्लम है कि मैं ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं. तो वही अपना पुराना सिस्टम है, ओरिजिन मान लो. आप ए को, बी को, सी को, डी को, किसी को ओरिजिन मान लो. आप किसी टाइप से कर सकते हो. और जो सिंपलेस्ट वे है वो हम ए को ओरिजिन मान लेते हैं. ये लो, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस. एंड दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स 0 0. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी 0 0. तो यहां से क्या बना, m1 की वैल्यू हो गई मेरे पास m और कोऑर्डिनेट क्या है इसके 0 0, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू आ गई 0 0. x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0. अब यहाँ पे आ जाओ b पे. m2 का मास कितना है 2m और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. एट b व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. द वैल्यू ऑफ x इज l एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 0. b में x की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस क्या ओरिजिन से l, तो कोऑर्डिनेट इज l एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0. जैसे हम ग्राफ लोड करते हैं x और y को, तो ये x l है और y 0 है, तो दिस इज द पॉइंट. तो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया l 0, मतलब ये बन गया x2 और ये बन गया y2. अब आओ m3 पे. m3 इज इक्वल टू 3m, मास इज 3m. नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट. दिस इज l एंड दिस इज l, देन c पॉइंट विल बी l एंड l. xl yl दोनों मीट कर गए यहाँ पे एंड दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ m3. कोऑर्डिनेट क्या है इसका l एंड l, यानी कि x3l एंड y3 भी क्या होगा l हो जाएगा. एंड लास्ट इज m4. m4 इज इक्वल टू m. अब m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. y कोऑर्डिनेट इज l एंड x कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड l. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. उसके लिए ओरिजिन मानना पड़ेगा. ओरिजिन में किसी को भी ले सकता हूँ. ओरिजिन के लेफ्ट वाले डिस्टेंस होंगे नेगेटिव और राइट वाले डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव. तो आप बी का ओरिजिन, सी का ओरिजिन लेके इस क्वेश्चन को अपने आप करोगे तो लोकेशन विल बी सेम. m4
के कोऑर्डिनेट्स बन गए x0 yl, यानी कि x4 एंड दिस इज y4. नाउ वी हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट. द फॉर्मूला फॉर x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. दिस इज द फॉर्मूला फॉर x सेंटर ऑफ मास. तो नाउ पुट द वैल्यूज. व्हाट इज m1 इज m, यहाँ हमने लिख दिया. अब यहाँ से देख के लिखना है x1 0, देन m2 इज 2m, देन x2 इज l, m3 इज 3m l, m4 इज m0 अपॉन टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस m. तो x सेंटर मास विल कम्स आउट टू बी 0 प्लस 2 ml प्लस 3 ml अपॉन 3 6 7 m. तो x सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 5 ml अपॉन 7 m, 5 l by 7. The first point is 5 l by 7. This is the x center of mass. Similarly, you can find the y center of mass. And what is the formula for y center of mass? m1 y1 m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4. In this question, m1 is m, y1 0, m2 is 2m, y2 again 0, m3 3m, y3 l, m4 m, y4 l. Put the values and find the answer. तो ये आपने अपने आप करना है. हाउ कैन यू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. अगर मैं ओरिजिन को चेंज करता हूँ तो आंसर सेम नहीं आएंगे, बट जब प्लॉट करोगे ग्राफ में तो लोकेशन सेम आएगी. ये 0, ये l, दिस इज l by 2. अगर मैं m1 को यहाँ लिखता हूँ एंड सपोज दिस इज द ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा l by 2. क्लियर. अगर मैं ओरिजिन को यहाँ लिखता हूँ तो ये डिस्टेंस l by 2, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस l by 2. अगर मैं ओरिजिन को यहाँ लिखता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो व्हेन यू प्लॉट द पॉइंट तो वो लोकेशन सेम आएगी, आंसर सेम नहीं आएगा. अगर मैं इसको ओरिजिनल लिखूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे l by 2, तो आंसर विल बी l by 2. अगर मैं इसी को ओरिजिनल मान लूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा 0. अगर इसको ओरिजिनल मान लूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, माइनस l by 2. तो आपका आंसर आएगा माइनस l by 2. तो फिर आप कहोगे तो मैच ही नहीं कर रहा. तो मैच लोकेशन करेगी, पोजीशन करेगी, कोऑर्डिनेट मैच नहीं करेंगे. तो अगर आप इसको ओरिजिनल लेके चलते हो तो आंसर जो आएगा वो लोकेशन सेम रहेगी उसकी, बट कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम मैच नहीं करेंगे क्योंकि मासेस आर डिफरेंट. इन दिस न्यूमेरिकल, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. 3 equal masses are placed at A, B and C at the vertices of an equilateral triangle. कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसमें भी मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. मासेस तीनों क्या है यहाँ पे सेम रखे हैं. सेम यहाँ पे पहले मुझे ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा. लेट ए विल बी ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. Suppose A is the origin, then x coordinate is 0 and y coordinate is 0. जो A है इसका x coordinate भी 0 है और y coordinate भी 0 है. अब B पे आ जाओ. B एट B, x की वैल्यू है L और y की वैल्यू क्या है 0. अब मुझे निकालना है C के कोऑर्डिनेट. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ये डिस्टेंस आएगा मेरे पास l by 2 और ये डिस्टेंस है सपोज y3. अब x3 तो मुझे पता है l by 2,
बट y3 का वैल्यू नहीं मालूम मुझे, y3 अननोन है। अब मुझे y3 फाइंड आउट करना है तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। अगर मुझे पाइथागोरस यूज करनी है इन ट्रायंगल ACD, कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में y3 क्या बन जाएगा? y3 इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अंडर रूट। व्हाट इज AC? L स्क्वायर माइनस L बाई 2 स्क्वायर अंडर रूट। y3 इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। ये बन जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू रूट 3L बाई 2। तो y कोऑर्डिनेट क्या बन गया? रूट 3L बाई 2। दिस इज द फर्स्ट मेथड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस एंगल इज 60 डिग्री, y3 इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, तो 1060 यूज कर लो। 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y3 जो मुझे निकालना है और बेस कितना है? L बाई 2, तो y3 इज इक्वल टू L बाई 2 1060, y3 L बाई 2 1060 क्या होता है? रूट 3 एंड y3 इज इक्वल टू रूट 3L बाई 2। तो कोऑर्डिनेट निकालने किसी मेथड से आप निकाल दो। अब कोऑर्डिनेट निकालने के बाद मेरे पास निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे? एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। पुट कर दो वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। सेम y सेंटर ऑफ मास कैसे बनेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो y कोऑर्डिनेट भी पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। बस मेन पॉइंट इज हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, एंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू चूज ओरिजिन। ओरिजिन जो सिंपलेस्ट वे होगा वी विल चूज दैट ओरिजिन। तो सबसे सिंपल यही है, ए विल बी टेकन एज ओरिजिन एंड फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट्स।